So dear students, in this video I will discuss some more questions of exercise 9.4 chapter differential equations, class 12th maths NCERT. See question number 17. Here the question is written, find the equation of the curve passing through the point 0 minus 2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. So this is the condition given. You know that slope of tangent is, suppose any curve is here and a tangent is drawn at xy. So at any point xy on the curve, product of slope of tangent, you know that slope of tangent is given by dy by dx at this point. So by given condition we can write product of two things, product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point. So on left side you will have dy by dx slope of tangent and y coordinate y into dy by dx is equal to x. This is the differential equation and I have to solve this, and we are given this point 0 minus 2. So condition is x equal to 0, y equal to minus 2. This condition will be used to find value of constant of integration, because 0 minus 2 is the point through which the curve is passing. तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होता है 0 माइनस 2 से. तो ये आपका कंडीशन यूज करेंगे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बनाने के लिए आपको ये कंडीशन यूज करना है. द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है, और y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. अब इस इक्वेशन को लेकर के आपको सॉल्व करना है. So mainly this equation is of the variable separable type, so we can easily separate the variables. So from 1 you can write, from 1 separate the variables, y dy is equal to x dx, and now integrating both sides, what you get, y dy equal to x dx. So integrate both sides, you will get y square upon 2. So the integral of y is y square upon 2, integral of x is x square by 2 plus c, constant of इंटीग्रेशन. इस तरह से सेपरेट कर लेना है वेरिएबल्स को यहाँ पे, dy के साथ y और ds के साथ x, फिर इसको बाद इंटीग्रेट कर देना है. और अब इसके आगे आपको कांस्टेंट इवैल्यूएट करना है, c की वैल्यू. तो c की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे. So suppose this is equation number 2. So putting x equal to 0, y equal to minus 2 in equation number 2. ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख देना आपको. तो क्या आएगा आपके पास, minus 2 square by 2 equal to 0 square by 2 plus c. So here you will get value of c equal to, यहाँ पर तो 0 हो गया टर्म, यहाँ पर 2 square by 2 आ गया, c की वैल्यू 2 आ गई. अब c की वैल्यू 2 का आपको रख देना है इक्वेशन नंबर 2 में, और फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगा. So putting value of c in 2, c इक्वल टू 2 आ गई, इसको 2 में रख देना है. y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2. Multiplying by 2 you will get y square equal to x square plus 4 or y square minus x square equal to 4. This is the required equation of curve.
इस तरह से ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया सेपरेबल वेरिएबल टाइप का, वेरिएबल सेपरेबल टाइप का था। इंडिकेट करने के बाद कांस्टेंट इवैल्यूएट करने के लिए जो पॉइंट आपको दिया था कुछ कि कर्व इस पॉइंट से पास होता है वो यूज करेंगे, उससे आपको सी मिल जाएगा और फिर सी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देना। ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। So question number 18, see the question, at any point x, y, at any point x, y of the curve, the slope of the tangent, is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. So this is the question. यहाँ पे क्या है, कोई कर्व है जिसके किसी पॉइंट एक्स वाई पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का डबल है। इसका स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट के स्लोप का डबल है। तो आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। फिगर आपका इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कर्व है आपके पास और उस पर एक टेंजेंट है, एक्स वाई इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और एक और पॉइंट आपका कहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये आपका पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ये आपका पॉइंट है -4, -3। तो जो एपी लाइन है, एपी का जो स्लोप है वो टेंजेंट का जो स्लोप है, क्या लिया क्वेश्चन दिया हुआ आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ इस एपी। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2 times the slope of AP. So by given condition slope of tangent is this PT is twice the slope of line segment joining point of contact to this point, 2 times slope of this line AP. So you know what is slope of tangent, it is dy by dx. And what is slope of AP? AP का स्लोप फाइंड करना आपको, y2 minus y1 upon x2 minus x1। वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा y plus 3 upon x minus 4 x plus 4। So this is the equation, this is the differential equation। इस तरह से ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। जो कंडीशन था उसको अप्लाई किया आपने कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डबल है किसका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू -4, -3। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन का सेगमेंट का डबल कर देंगे, इसका स्लोप एपी का डबल करेंगे तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है। स्लोप ऑफ एपी आप निकाल लेंगे y2 minus y1 के हिसाब से, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका। तो आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल हो गया यहाँ पे। सो नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स फ्रॉम 2
separate the variable, bring function of y with dy, function of x with dx. You will get dy upon y plus 3 is equal to 2 times dx upon x plus 4. And now integrate both sides. Integrating both sides. So dy upon y plus 3 is equal to 2 times dx upon x plus 4. अब दोनों को इंटीग्रेट कर देना है. दोनों में आपके डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लॉग फॉर्म में इंटीग्रेट हो जाएगा. So this will give you log of y plus 3 equal to 2 times log of x plus 4 plus constant of integration. ये आ गया, सॉल्यूशन हो गया आपका. अब c निकालने के लिए आप कंडीशन दिया, since given curve passes through point is given -2 1, putting x equal to -2 y equal to 1 in 2. सेकेंड इक्वेशन में आपको ये वैल्यू रख देना है, इससे आपको c मिल जाएगा. तो अब c फाइंड करते हैं. So you will get log of y is 1 plus 3 is equal to 2 log of 4 minus 2 plus c, which is log of 4 is equal to 2 log 2. Using the property of log, you can bring this 2 in the power of 2. So log 4 is equal to log of 2 square. This implies log 4 is equal to log 4 plus c. This implies c equal to 0. इस तरह से आपको c की वैल्यू 0 मिल गई. अब इस c की वैल्यू को आपको रख देना है क्वेश्चन नंबर 2 में और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा. पुटिंग वैल्यू ऑफ c in 2, what you will get, log of y plus 3 is equal to log of 2 log of x plus 4, and this 2 you can bring in the power or equal to log of x plus 4 whole square. और दोनों साइड में लॉग है, लॉग आप हटा भी सकते हैं यहाँ से. दिस इम्प्लाइज y plus 3 is equal to x plus 4 square. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व. ये आपका जो कर्व आपको क्वेश्चन में चाहिए वो मिल गया आपको, x plus 4 square इक्वल टू y plus 3. इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, वेरिएबल से वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया. फिर जो कंडीशन पॉइंट आपको दिया हुआ था जिसका कर्व पास हो रहा है उसको यूज़ करके c की वैल्यू निकालना है. c की वैल्यू निकाल लिया आपने, 0 आ गया, और c की वैल्यू को फिर यहाँ रख देना है और ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व होगा. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो.